Good afternoon. In our top story today from Arunachal Pradesh, Tawang. A massive peaceful rally was held in Tawang this morning, where over 2,000 plus people gathered to express solidarity with the global Buddhist community. The rally was organized to support rightful representation of Buddhists under the Bodh Gaya Temple Act of 1949, a long-standing demand that is gaining momentum across Himalayan regions. The rally began from Chamling and culminated at Parade Ground Tawang, where religious leaders, public representatives and civil society members addressed the crowd with a unified voice, calling an amendment of the Act to ensure Buddhist majority representation in the management of the Skat Mahabodhi Temple in Bodh Gaya. The Skat Mahabodhi Temple is the very site where Lord Buddha attained enlightenment, yet under the current act enacted in 1949, the temple's governing body consists of a Hindu majority, raising concerns among Buddhists about rightful custodianship and the spiritual integrity of the site. Prominent figures represented at today's rally include the abbot of Tawang Monastery, His Eminence Cheling Tulku Rinpoche, ZPC Leki Gombo, Doble Rinpoche, Tenzin Gyurme Rinpoche, DOCA Director Tenzin Galden, MMT Secretary General Rinchen Norbu, and former MLA Tsewang Dondrop. A speaker emphasized that this is not a political issue but a spiritual and cultural concern of a global importance. They called upon the government of India and the Bihar state government to make the necessary amendments to the act and reassert the sanctity of Buddhist administration at Bodh Gaya. The rally concluded with the mass prayers and chanting, sending a strong yet peaceful message from the highlands of Tawang to the rest of the country and the world, that the Buddhist community stands united in protecting its most scarred heritage. This was our report from Tawang, where a peaceful call for justice echoed across the Himalaya today. Stay tuned for more updates. तो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मनपा मिमांग सोकपा के सेक्रेटरी जनरल श्री रंजन नरबू जी। तो उनसे हम जानेंगे कि आज का जो इस मास प्रोटेस्ट रैली है जो बोध गया टेम्पल इशू को लेकर है, तो उनके इसके बारे में उनका क्या राय है और मनपा मिमांग सोकपा का इसके ऊपर अपना क्या राय है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से, लगभग मैं कहूँ तो बहुत सालों से ये बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को लेकर पूरे विश्व भर में उसका प्रदर्शन चल रहा है, और हाल ही में कुछ एक महीना कुछ हुआ है जिसमें उसका जो गति है और जोर पकड़ लिया है। तो इसको लेकर लद्दाख में भी कुछ दिन पहले इस प्रकार का एक पदयात्रा हुआ है। आज तवांग में भी वन क्षेत्र का ये तवांग बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है, जिसमें कुछ गैर संस्कारी संस्थाओं ने लेकर, जैसे कि अंशु हो गया, पीयू मनपा फाउंडेशन हो गया, तो उन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा एक पदयात्रा आज छमलंग से लेकर यह तवांग पैरेड ग्राउंड तक निकाला है। तो उसका जो मेन जो डिमांड है वो यही है कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 को रिपील करना चाहिए, और इसमें जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है उनका अपना बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जी, तो रंजन नरबू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनपा मिमांग सोकपा की तरफ से जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान किरण रिजिजू, उनको कोई आपने मेमोरेंडम पेश किया या उनसे कोई आपने निजी बातचीत की? हाल ही में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज का इस पदयात्रा को लेते हुए हमारा ये अपने जो एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात हो चुका है कि आने वाले समय पर ये दिरांग में भी इस प्रकार का पदयात्रा हो, खलकतांग में भी इस प्रकार का पदयात्रा हो, और पूरे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो मनपा मिमांग सोकपा है उसके द्वारा 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम देंगे। और साथ में बिहार सरकार को यह निवेदन करते हैं कि आप समय आ चुका है कि जो बौद्ध के जो अनुयायी हैं उनको 1949 एक्ट को रिपील करते हुए उनको अपना हक दिया। तो रंजन नरबू जी, बिहार में जो सरकार है, एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार जी का सरकार है जो कि एनडीए का हिस्सा है, और हमारे यहाँ पर जो अरुणाचल में सरकार बीजेपी का है, तो एनडीए भी बीजेपी सरकार में ही है, बीजेपी भी एनडीए सरकार में ही है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो अपील है, हमारा जो निवेदन है, ये कितना कामयाब होगा? नीतीश सरकार इसको कैसे देखेगी? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना जो एनडीए सरकार है वो हमेशा बौद्ध के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा है। जी, क्योंकि आपको 2015 में ये जो बौद्ध गया डिक्लेरेशन भी हुआ था, जिसमें अपना इस
देश के जो स्वयं प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर बोध गया डिक्लेरेशन किया था। जी जी लेकिन ये जो मैंने बताया कि इस प्रकार का जो धारणा है जी। वो एक आइसोलेशन के तौर पर चल रहा था और जी। सोशल मीडिया ना होने के कारण उसका जो गति है जी। वो तेज से नहीं पकड़ा। जी जी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से जिस प्रकार से जो गतिविधि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है जी जी और पूरे विश्व के जो लोग इससे जुड़ा हुआ है, तो मुझे पूरा लग रहा है कि जरूर इस एक्ट का रिपीट होगा और रिपीट करते हुए बौद्ध के जो भी अनुयायी है, बौद्ध के जो भी जो बौद्ध के जो आपका जो धारणा को लेकर जो पूरे अपना जीवन त्याग दिया है उनको उसका हक जी, जरूर जी, मिलेगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी कुछ आने वाले कुछ दिनों में जो मनपा मिमंग सकपा है वो अपने पूरे जोर से पूरे शोर से जो है इस जो आज का जो पहल यहाँ पर कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने शुरू की है उसको आगे लेके जाएगी और इस प्रकार की जो रैली जो है वो दिरांग में होगा, खलाकांग में होगा, उनका यह कहना है। तो रंजित नरबू जी, आपकी जो आगे की जो पहल है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।